So good afternoon once again. Hello everyone. I'm Master Krishna Singhania and you are watching Learning Passion with me. So guys, I think आप मेरे साथ पढ़ने को बहुत enjoy कर रहे होगे and you might be understanding the concepts which I am trying to teach you of class 9th SST. So guys, Learning Passion पे हमने अभी तक first chapter जो 9th syllabus का है वो complete कर लिया, that is French Revolution, and today we are going to start with our second chapter, that is what? Yes, we will start with geography first chapter today, that is the India size and location. Before starting today's chapter, let me introduce you with all the syllabus topics that you are going to cover this year. Okay, मैंने आपके साथ हिस्ट्री का तो शेयर कर ही दिया था कि आपको 4 चैप्टर्स रहेगी टोटल. पहला फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हमने कंप्लीट कर लिया है. सेकंड विल बी रशियन रिवॉल्यूशन. थर्ड विल बी नाजिज्म एंड फोर्थ यू विल हैव 3 ऑप्शंस अवेलेबल. मैं आपको बता दूं, आपको जो यूनिट 2 है उसमें 3 चैप्टर्स है और उसमें से आप कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू. Mostly I will prescribe, you can go for peasants and farmers according to your school prescription. Okay, now let me show you the table of your index so that you get a very clear idea. So this is of geography. Okay, so India size and location that we are going to do today. Then you are having physical features of India, drainage, climate, natural vegetation, wildlife and population. So okay, I think you are having all 6 chapters, no reduction in any of the chapters. Okay, you are having all the 6 chapters of geography. Here comes the portion of economics, the story of village Palampur, which is going to be our next topic after we complete this chapter. Okay, then second chapter is people as resource, then third is poverty as a challenge, and fourth is food security in India. Actually economics is very interesting and easy to learn. Okay, अगर आप एक एक चैप्टर को एकदम डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको इतना मजा आएगा पढ़ने में. एंड आई थिंक इवन बेटर देन दिस इज क्लास 10th इकोनॉमिक्स. ओके, आपको इतना डिटेल में पढ़ने मिलेगा एंड बेसिकली आई थिंक इट्स लाइक अ स्टोरी गोइंग ऑन. आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपका एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो. एंड लास्ट वी सी ऑफ पॉलिटिक्स साइंस. तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें जो डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये ओमिट है, ये आपके पोर्शन में अब नहीं रहा, ये 2017-18 तक था. You are having first chapter, that is what is democracy and why democracy. After completing village Palampur, we are going to start with what is democracy and why is democracy. Then institutional design, electoral politics, working of institution and democratic rights. Okay, 5 chapters of civics. So how many total? 6 of geography plus 5 of civics means 11 plus 4 of economics, that is 15, and plus 4 of history, that is 19. तो आपके सिलेबस में टोटल 19 चैप्टर्स है. सो गाइस यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली, बिकॉज अगर आप टाइम वेस्ट करोगे अभी तो आपको बाद में 19 चैप्टर्स एक साथ फाइनल एग्जाम में बहुत ही टफ जाएंगे. तो इसलिए मैं कहता हूँ आप मेरे साथ लर्निंग पैशन पे जुड़े रहिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए. आई होप मैंने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त आपको 1 मार्क के क्वेश्चन दिए थे, सारे सजेस्ट किए थे, वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे. अगर ना किए हो तो प्लीज जाके तुरंत फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वीडियोस देख लीजिए, मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल होगी. मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको बाकी का एक्सेस अवेलेबल रहेगा. ओके गाइस, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर 1 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन. So guys, I would like to first say that India had made a very developing progress in last 5 decades. Decades मतलब 10 यानी पिछले 50 सालों में इंडिया ने एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया आफ्टर इंडिपेंडेंस. इट वुड हैव बीन अर्लियर आल्सो इफ वी वुड नॉट बी अंडर ब्रिटिशर्स रूल. अब उनकी कॉलोनी अगर नहीं बनते तो शायद हमारा डेवलपमेंट आज अमेरिका के आसपास होता था. बट ड्यू टू सम रीजंस वी लैक दैट, एंड बट स्टिल ड्यू टू आवर हार्ड वर्क वी हैव अचीव्ड वन स्टैंड और वन सक्सेस टिल नाउ. ओके, हमने एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है,
इंडस्ट्री में डेवलप कर लिया है, टेक्नोलॉजी IT सेक्टर इन आर कंट्री इज वेल डेवलप्ड. इफ यू गो बैंगलोर, so बैंगलोर इज फुल्ली नोन फॉर IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम जिसे कहते हैं, आपने 8th में पढ़ा होगा. तो उसके लिए बैंगलोर इज द मोस्ट फेमस सिटी इन इंडिया, जहाँ पे आपको जवाहरलाल नेहरू IT पार्क मिलेगा, विच इज वेल नोन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. And in world history also we have made one great status, because everyone is still now inspiring from India's struggle to get freedom. हमारा struggle, हमारी मेहनत, हमारी psychology, and some of our great leaders who proved that India is doing something. Okay, so this was the introduction for India's ancient history, or we say India's development in past 50 years. So let us start. In this chapter we are going to see geographically India's position or location on map. Then we will study some details about India. Then we will see how India developed. Then we will see standard meridian, which you will get in later concepts. And we will see positional values of India. So you will get in this chapter. So let us start with the location. So India totally lies in northern hemisphere. Okay, this chapter is very important because इसमें 1 मार्क के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लाए. इन भले ही बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें 3 to 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बहुत कम है, बट 1 मार्क के लिए इनमें बहुत सारे क्वेश्चन, बिकॉज यू नीड अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक. ओके, so first start here with location. So in location, India is totally lying in northern hemisphere. Now how in northern hemisphere I will explain you. See, now see, this is a world map. Okay, it is given in your textbook. This is a world map. Okay, now if you see here, this line and this line divides whole world into 4 quarters. Okay, these two lines which are passing through center of the world from north to south and east to west divide it into 4 parts, or if I say only 2 parts, up and down, and this side. So total 4 parts. So India, if you see, totally lies in which part? If I say this part, above is north and below is south. So India lies in northern hemisphere. And if I consider this line and I say it as east and this as this as west and this as east, so India lies in eastern part of the world. So India lies in northeastern part of the world, but we do not consider east and west while comparing. We only consider northern and southern hemisphere. Okay, so India lies in northern hemisphere. Now India, these are 4 points mentioned here. Okay, ये इंडिया के पॉइंट्स है. नाउ पॉइंट्स इन द सेंस, अब आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, ऐसे so on till 180 डिग्री. And here if you see, it is also given 30 degree west, 60 degree west till 180 degree west. So what it shows, it is dividing the country in different angles. Okay, if you see here, then have a look here. You will see 0 degree, 15 degree north, 30 degree north, 45 degree north till 75 degree, and here also till 75 degree south. So what we can say here कि यहाँ पे ये इंडिया का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये पॉइंट की वैल्यू हमने इस ग्राफ पे निकाली है. ओके, दिस 0 डिग्री इक्वेटर हमने देखा जिधर डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, इक्वेटर. तो इक्वेटर के पास है इंडिया. ओके, तो यहाँ पे ये जो यहाँ से हम हमारा मेजरिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा इंडिया का, उसकी कितनी डिग्री पे आता है. सो दिस ऑल आर गिवन यू डिग्री, कि इंडिया का लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड मतलब दिस स्ट्रेट लाइन इफ यू सी, दिस आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड, and this horizontal line is called as longitude, straight from north to south, latitude, and this from west to east is called as latitude, or no, it's called as longitude. Okay, तो इंडिया का लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है,
8.4 डिग्री नॉर्थ, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हमारे सारे डिग्रीज जो रहेंगे नॉर्थ, जो लैटिट्यूड की जितनी भी डिग्रीज रहेगी वो नॉर्थ आएगी। एंड 37.6 डिग्री मीन्स दिस टॉप मोस्ट पॉइंट। ओके, तो 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ is India's latitudinal position on map. And if we say longitudinal is west to east, तब इंडिया कहाँ पे आता है? ईस्ट में आता है। तो इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल पोजीशंस कहाँ में रहेगी? ईस्ट में रहेगी। तब ईस्ट में क्या है इंडिया की? अब कैसे पता चलेगा 67.7 डिग्री ईस्ट कहाँ पे है? तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे, अब यहाँ पे आप ऐसे लगा के देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा। तो हियर इज इंडिया 68.7 डिग्री ईस्ट, and here it goes to 97.25 डिग्री ईस्ट। तो आप ये जितने भी मेजरमेंट्स है इन्हें याद करें, बिकॉज ये पूछते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताइए कहाँ से कहाँ तक है, या फिर लॉन्गिट्यूडनल बताइए। तो आपको लैटिट्यूड समझ गया, दिस स्ट्रेट लाइन इज लैटिट्यूड, वर्टिकल लाइन्स आर लैटिट्यूड and horizontal lines are longitudes. And one is Tropic of Cancer 23.30 degree that divides country into almost two parts. So this you see, this black line, this is Tropic of Cancer. Okay, so you see it almost passes from the center of India, which divides India into two parts. That is called as Tropic of Cancer. और उसकी वैल्यू कितनी है? 23.30 डिग्री नॉर्थ। ये भी पूछा जा सकता है। ओके, नाउ इंडिया हैज टू आइलैंड्स। ओके, मैं आपको इस ग्राफ के थ्रू बताता हूँ, ठीक है? ये चार्ट इजी है समझने में, थोड़ा आपको इजीली समझेगा भी। ओके, मैंने आपको जो पोजीशंस बताई थी, देखो जो डिग्रीज में, वो देखो ये यहाँ पे मैप में आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है? वो है ये। Now this, if you see, this line is Tropic of Cancer. It is written here, see, Tropic of Cancer. Okay, so this is called as Tropic of Cancer. Okay, this is Tropic of Cancer, and from here India goes narrow in the Indian Ocean. ये इंडियन ओशन है पूरा, इसमें जो है इंडिया नैरोली अंदर जाता है, विच डिवाइड्स ओशन इनटू टू सीज। वो ओशन जो इंडियन ओशन है अपने नैरो वर्जन का कारण दो सीज में डिवाइड होता है, दैट इज अरेबियन सी इन वेस्ट, ओके, एंड बे ऑफ बंगाल इन east. Okay, and here respectively we have two union territories or two islands, that is, first is Lakshadweep in Arabian Sea in western side of India, and we have here Andaman and Nicobar Islands which is in eastern part of India in Bay of Bengal Sea. Okay, आप ये अच्छे से याद कर लीजिए, ये मैप इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ओके, ये डिग्रीज आपको याद करनी पड़ेगी। यू नीड टू लर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिग्री, हाउ इट डिवाइड्स इंडिया, देन यू नीड टू लर्न which two seas are there and two islands of India, in which sea which island. Okay, now India covers 2.4% of the total geographical land, यानी पूरे वर्ल्ड में जितनी लैंड है उसका 2.4% लैंड किसके पास है? इंडिया के पास है। दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, एंड इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री। यहाँ पे नीचे ग्राफ है, लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री कौन सी है। तो सबसे बड़ी रशिया, देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, एंड एट 7th पोजीशन इज इंडिया। Now India, let us go again back to map for better understanding. Now see this map. This wherever you see this dark region is water and this light color region is land. So if you see from here water starts. So if you go through this boundary,
This is called Indian land boundary. Indian land boundary. This region where you can see cursor moving, this is India's land boundary. Here, देखिए ये इंडिया की इतनी लैंड बाउंड्री है. And water boundary is then what? Where water is there at the end. So this is called as water boundary of India. Okay. ये मुंबई यहाँ पे गोवा, these are all at the water boundary of India. Okay. This is called as water boundary. तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर की है. और इंडिया की जो वाटर बाउंड्री वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर्स की. ओके. Now let us cover first standard meridian of India. Now what happens if you see, again we will go in this degree map. Okay, you will have a better understanding here. Now if sun rises here at 0 degree, ठीक है, sun यहाँ पे rise होता है 0 degree पे. Now when sun will rise, so rays will travel from here to here. See properly cursor. Okay, अगर sun यहाँ पे rise होता है तो धीरे धीरे करके सन की रेज यहाँ से पास होगी फ्रॉम अर्थ. ओके. नाउ इफ इट विल पास, तो पहले कुछ रीजन के इंडिया में पहले धूप आएगी और कुछ रीजन में बाद में. लेट मी सी शो यू हियर. नाउ सन राइजेस इन द ईस्ट. सबको पता है ये, यानी सन राइज कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा ईस्ट में. एंड इट विल गो एंड सनसेट इन वेस्ट. तब वो ईस्ट में राइज होगा तो पहले जो रोशनी है वो कहाँ पे दिखेगी? यहाँ के स्टेट्स में ईस्ट के, जैसे अरुणाचल प्रदेश, हिमालय, यहाँ पे पहले धूप दिखेगी. और जब थोड़ा थोड़ा ऊपर आते जाएगा, समझो यहाँ पे सन आ गया, तब ये वाले स्टेट्स को रोशनी आएगी. तो इससे क्या होता है? ये स्टेट्स में पहले रोशनी आती है, ये स्टेट्स में बाद में. तो इससे क्या होगा? इनके थोड़ा सा टाइम में भी डिफरेंस आएगा. तो ऐसे कैसे हो सकता कि यहाँ पे सुबह के 6 बजे और यहाँ पे सुबह के 8 बजे हो? तो दिस वुड मिसमैच द टाइम ऑफ बोथ द स्टेट्स इन अ सिमिलर कंट्री. तो इसलिए इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना लिया विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया, दैट इज एट 82 point something degree. इट इज 82.30 डिग्रीज. ओके, वो इधर से पास होता है थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश. सो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव सिलेक्टेड वन स्टैंडर्ड टाइम that would act as a standard time for whole country. Okay, and that's why it is called as what? Standard meridian. एक हमने सिस्टमैटिक परफेक्ट टाइम चूज कर लिया है हमारी पूरे कंट्री के लिए to avoid the confusion, and that is called as standard meridian of India, that is at 82.30 degree which passes through Mirzapur in Uttar Pradesh. Okay, now India and the world. अब आप देख सकते हो इस ग्राफ में, we need only this much part. Okay, now इंडिया का जो है एक, इंडिया क्या है? एक साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशिया का. इंडिया है एशिया के सबसे ज्यादा बॉटम में. ठीक है, तो उसका क्या हुआ? इंडिया जो है इंडियन ओशन पे सबसे ज्यादा बाउंड्री पाता है. 7,516.6 किलोमीटर जितनी बड़ी बाउंड्री है उसकी इंडियन ओशन पे, जिसकी अभी तक और कोई देश की इतनी बड़ी बाउंड्री इंडियन ओशन पे नहीं है. तो क्या होता है? जो भी स्टेट्स ट्रैवल, जो भी अदर कंट्रीज है जो शिप के थ्रू ट्रैवल करते हैं, अगर उन्हें ब्रेक लेना है तो क्या करते हैं? इंडिया में आके ब्रेक लेते हैं. क्यों? अब समझ लो कोई ऑस्ट्रेलिया से निकला है, उसको जाना है अफ्रीका, तो वो क्या करेगा? इंडिया में एक बहुत अच्छा कोस्ट लाइन है, तो वहां पे वो ब्रेक ले लेगा बीच में, एंड देन आफ्टर फ्यू टाइम इट वुड अगेन रीस्टार्ट इट जर्नी एंड गो टू अफ्रीका. सिमिलरली वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर कोई अफ्रीका या अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, तो व्हाट दे विल डू, दे विल पास थ्रू इंडियन ओशन ओनली. तो इतनी बड़ी बाउंड्री ने क्या करेंगे? वो इंडियन ओशन पे एक ब्रेक लेंगे एंड देन दे विल प्रोसीड टू ऑस्ट्रेलिया. तो इससे क्या होता है? वी कनेक्ट countries at the two end through a break in the between, and that's why India has a significant position at the Indian Ocean. Okay, आपको समझ गया होगा मैं जो बोलना चाहता हूँ.
अगर ना समझाओ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अगेन टाइप कीजिए, मैं वापस समझाऊंगा। एंड वन मोर थिंग इज हियर, डिड यू नो, आप ये डिड यू नो सारे पढ़िए बिकॉज ये पूछते हैं पेपर में, ओके। दीज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड बीइंग आर कंटिन्यूअसली आस्क्ड इन पेपर्स। So did you know that since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पे Suez Canal का इम्पोर्टेंस है वो बताना। इस इंडिया मैप इन अक्रॉस द होल कंट्री, मैं आपको जब बता था सी रूट से जो ट्रैवल करते हैं उसका ही एक ये मैप है। इंटरनेशनल जो ट्रेड होता था उसका जो ट्रैवलिंग होता था, तो देखिए उसका ट्रैवलिंग, दिस डॉटेड डॉटेड इज वन ऑफ sea routes and this straight line are air routes. So you can see dotted which comes here from here, have a break here, then it goes among here, then here also you can see this break here and then they continue here. So you can see they are taking break at India only. For what? Due to having the most long boundary on Indian Ocean which provides them a stable place to have a break. जैसे इंडिया एयर रूट्स भी देखो आप, अगर दो कंट्री को, अगर यहाँ पे वाले किसी को यहाँ पे जाना है तो दे टेक अ ब्रेक इन इंडिया एंड देन प्रोसीड। एंड इंडिया का जो था, पहले से ब्रिटिशर्स भी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे, तो इंडिया वॉज अ सिग्निफिकेंट प्लेस टू ट्रेड ओनली, ओके। एंड we started with by sea routes and air routes much later, but before that we started with the land routes। जैसे आपने 8th या 7th में पढ़ा होगा, सिल्क रूट, मसलिन रूट, इंडिगो रूट, तो ये सब रूट्स काय के थे? थ्रू लैंड। एंड दैट्स व्हाई इंडिया वाज फेमस फॉर हैविंग ट्रेडिंग थ्रू लैंड। and we have shared many things with other countries like ideas of Upanishads or Ramayana, the story of Panchatantra। If you are Sanskrit students तो आपको पता होगा कि पंचतंत्र की कहानियाँ क्या होती है। Then Indian spices, Indian cloth, and then Indian style of architecture। इंडिया में आप अगर कहें तो ताजमहल, तो दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ इंडिया विच कुड बी कॉपीड बाय अदर्स, ओके। तो जैसे डोम, हमारा डोम मीनारेट्स, दिस यू कैन सी इन ताजमहल। देन इंडियन वन मोर थिंग इज फाउंटेन, गार्डन में फाउंटेन होना। So like this are some of the Indian architecture styles that are being carried by people through trading and through land routes. Now Indian neighbors. Before knowing Indian neighbors, we need to know how many states and union territories does India have. So India have total 28 states, but after that Jammu and Kashmir incident, now India has 28 states and 8 union territories instead of 7, because एक union territory और add हो गई union territory, तो अब इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट्स है। अगर आपको सारी नहीं पता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी टोटल यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स की, वो आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछ सकते हैं कि इंडिया की टोटल यूनियन टेरिटरीज बताओ अगर ऐसा, ठीक है ना। इंडिया इज कवर्ड बाय मेनी अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ ईस्ट, देन इन नॉर्थ वी से Pakistan and Afghanistan in east. If we say in north, so China is there, Nepal is there. Then if we say in east, so we have Bangladesh, Myanmar, Bhutan. ये सब east में. In south we have only one country, that is Sri Lanka, and beside that we have one more, that is Maldives. Okay, so Sri Lanka is here you can see, okay, Sri Lanka is here. This is Maldives in south. If we say in east, so Myanmar or Bhutan, and Bangladesh. If we see in north, so China, Nepal, and here Bhutan. And if we see in east, so Afghanistan, Tajikistan, and Pakistan. We have these three countries. So Maldives and Sri Lanka are our southern neighbors. Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of sea from a park strait, यानी थोड़ा सा डिस्टेंस से सेपरेटेड है वो। एंड मालदीव सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप, ये देखो ये लक्षद्वीप है इंडिया के यूनियन टेरिटरी, और इसके जस्ट नीचे जो है वो है मालदीव, इट्स अ आइलैंड कंट्री। So you can see how India plays a very crucial role
ठीक है, इंडिया कनेक्ट्स एवरीवन, वो एक कनेक्टिंग की तरह काम कर रहा है। एंड फॉर ट्रेड इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस, इसलिए शायद ब्रिटिशर्स इंडिया में आए भी थे फॉर ट्रेडिंग ओनली, टू मेक इट एज अ मोस्ट फेमस कॉलोनी ऑफ ट्रेड। बट शायद हमारे लीडर्स को पसंद नहीं आया, एंड इट वॉज अ वेरी ग्रेट एफर्ट डन बाय देम टू गेट इंडिया फ्री फ्रॉम ऑल दिस। एंड नाउ इंडिया ऑन इट्स ओन would try to get developed and being a model nation। तो यहाँ पे चैप्टर ये खत्म होता है। एक्सरसाइज है जो आपको सेल्फ बेसिस पे करना पड़ेगा। डू इट वेल, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ इसी तरह से पूछे जाते हैं। आपको इस चैप्टर में 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा फोकस देना चाहिए मेरे हिसाब से, ना कि 3 to 5 मार्क्स के लिए, बिकॉज दिस चैप्टर हैज मेनी क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स अवेलेबल। ठीक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के नोट्स एंड इम्पोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस की लिंक मिलेगी, आप उसे ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा और वो 1 मार्क क्वेश्चंस एटलीस्ट रीड कर लीजिएगा अगर आपके पास लिखने के लिए समय ना हो तो। And guys, if you like my videos, so please subscribe my channel Learning Passion, hit the bell icon and like button। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आज के लेक्चर में अगर कुछ भी ना समझा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपके लिए मेरे पास कोई सजेशन है कि मैं किस तरह अपनी वीडियोस को और अच्छा बना सकता हूँ या फिर मैं और कुछ कंटेंट पे आपके लिए वीडियोस बना सकता हूँ, तो प्लीज सजेस्ट कीजिए इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माय बेस्ट। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लर्निंग विथ मी एट लर्निंग पैशन। तो गाइस, हम अगले वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सून। थैंक यू। साइनिंग आउट, कृष्णा सिंघानिया।